दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. दुनियारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनियारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय न हेब, हो दुनियारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। जय मसीह की। जय मसीह की। अंकल आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। वीडियो ऑन करना है जी। वीडियो ऑन कर दिया। जी आपका वीडियो ऑन है। ठीक है, वीडियो ऑन है अभी। यस यस। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। We'll read Ecclesiastes chapter 11 today. आज हम सर्वोपदेशक 11 अध्याय को ध्यान करेंगे। Last week I remember we have covered up to chapter 10. मुझे याद है पिछले सप्ताह में 10 अध्याय और उसको पूरा किया था। Now there are only 10 verses. We shall read Ecclesiastes chapter 11. आज सर्वोपदेशक 10 अध्याय है, 11 अध्याय उसके 10 पद तक है, उसको हम पढ़ेंगे। So that we'll get the message in one time. While reading itself, we'll get the message written in this chapter. और इस लिखे हुए भाग को हम और एक समय है उसको पूरा से पूरा पढ़ लेंगे। Can anybody read in Hindi? आइए हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। I'll read one verse, you read one verse. हाँ, भाई एक पद पढ़ रहे हैं और अपने जगह में हम लोग मेरे साथ म्यूट करके भी पढ़िए दूसरा पद। Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर विपत्ति आ पड़ेगी। If the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth. If the tree fall toward the south or toward the north, in the place where the tree falleth, there it shall be. जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लगने ना पाएगा। As thou knowest not what is the way of the Spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with the child, even so, though thou knowest not the works of God, who maketh all. भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। Verse 7. Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun. यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, in the sight of thine eyes. But now know thou that for all these things God will bring thee into judgment.
अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। May the Lord bless this little word and speak to us this evening. प्रभु इन थोड़े से विचारों को हमारे लिए आशीष करे और हमसे बातें करे। Lord, we thank you for this evening. I am sorry, last 2-3 weeks I could not take this message because I was very much weak and I could not give thy word. Thank you for the privilege given to me to stand or to sit before thy people to share the little word from the book of Ecclesiastes. Bless this word that has been read by all of us. We are few, but where 2 or 3 gather in thy name, there am I in their midst. That's what you told us. We are more than 2. Father, anoint me, touch my lips, touch my tongue, touch my mind, and I am able to give thy word for thy people, those who are listening from far off place. Committing this wonderful book and this wonderful chapter in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. आमीन। We have already seen 10 chapters so far in book of Ecclesiastes. हम पहले ही 10 अध्याय तक सबोपदेशक को हम ध्यान कर चुके हैं। One verse from chapter 10 verse 20 brought to my attention. I was very much scared. God has spoken to me from chapter 10 verse 20. और एक पद जो है सबोपदेशक 10 अध्याय और उसका 20 पद को प्रभु जो है उन्हें बड़ा बोझ दिया है इस वचन को। There is a good exhortation for me and for all of us. Chapter 10 verse 20. Curse not the king, no not in thy thought, and curse not the rich in thy bedchamber. For a bird of the air shall carry the voice, and that which hath wings shall tell the matter. ये मेरे लिए और हमारे लिए एक बड़ा ही एक चेतावनी के वचन है। लिखा है, राजा को मन में भी शाप ना देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरे वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। One wise God servant told like this. एक बुद्धिमान प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा है, If anybody asks me to give word, I will choose Ecclesiastes in the whole Bible. और उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुझे प्रभु का वचन बांटने के लिए कहते हैं तो पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं सबोपदेशक की पुस्तक को चुनूंगा। There are 29 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament. But if anybody asks me to give word, the God servant told, I will take up only Ecclesiastes. तो पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराना नियम में 39:27. पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कि पुराना नियम में 39 पुस्तक है और नया नियम में 27 पुस्तक है, परंतु इन सारे पुस्तकों में से ये सबोपदेशक की पुस्तक में से ध्यान करने के लिए विचार किया है। There are wonderful books, 66 books in the Bible. 66 पुस्तक के बाइबल के अंदर में अद्भुत पुस्तक है। There is a book called Isaiah, Bible in the Bible, that speaks of wonderful things and promises. तो यशायाह की जो पुस्तक है पवित्र शास्त्र के बाइबल के अंदर का बाइबल है और उसमें प्रभु के और प्रतिज्ञा के बारे में आगमन और उसके जन्म के बारे में भविष्यवाणी है। There are Psalms 150, wonderful Psalms. Anytime you read, you will get very much comforted. और ये जो भजन की पुस्तक है इसमें 150 अध्याय है और ये हमारे लिए इन शांति संतावना देने के लिए बहुत ही अच्छा पुस्तक है। There are 4 Gospels. All the words came out of the mouth of Lord Jesus Christ. और यहाँ पर नए नियम में 4 सुसमाचार के पुस्तक हैं
जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए हैं। There is a book called Revelation, last book, that speaks of the new heaven, new earth, new Jerusalem, heaven. और जो प्रकाशित वाक्य है वो नया आकाश नया पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ है। But the God servant told that I will choose book of Ecclesiastes if I am given a chance to speak to the people. अगर मुझे प्रभु का वचन को बांटने के लिए बताने के लिए मौका दिया जाए तो मैं जो है सब उपदेशक की पुस्तक को चुनूंगा, ऐसा प्रभु का दास ने कहा। These days I really do not know why I have chosen Ecclesiastes, but personally it has enlightened me and it has brought my attention was concentrated upon the book of Ecclesiastes. और पता नहीं प्रभु ने मुझे ऐसा क्यों, प्रभु का आत्मा का अगुवाई प्रकाशन मिला कि मुझे जो है ये सब उपदेशक ये पुस्तक को मैंने चुना है। The very importance of this book of Ecclesiastes, it hits the target straight away. The stone will go and hit at the forehead. It hits the target. That's why this book is very, very important. और ये सब उपदेशक की पुस्तक है और पूरी हमारे केंद्र में जो कि हमारे हृदय हमारे दिमाग में पूरी रीति से लक्ष्य को वो भेजने वाला ये पुस्तक है। I am working in defense research. We make rockets and missiles. और मैं जो है कि सेना में वहाँ पर जो विज्ञान में वहाँ पर लॉन्च किए रॉकेट को बनाने के लिए और इन केंद्र में उन्होंने रहे हैं। You are aware I used to go to Balasur regularly 4 or 5 times a year. Like that I went for more than 25 years. We were launching missiles, that is rockets. और बालासोर में और 25 साल हो गए वहाँ पर और कई बार वहाँ गए हैं और जो रॉकेट मिसाइल को वहाँ से उन्होंने छोड़े हैं। The aim of launching missile is to hit the target, to hit the enemy's target. That is the aim of a rocket or a missile. जो रॉकेट का लक्ष्य जो और जो रहता है और जो निशाना रहता है शत्रु के ऊपर में उसको भेजने के लिए उसका निशाना रहता है। Sometimes it hits the target, sometimes it misses the target. कई बार उस निशाना को सही जगह में लग जाता है और कई बार वो निशाना जो है कि चूक जाता है। But Ecclesiastes, book of Ecclesiastes, all 12 chapters, every word is a missile, every word is a rocket. It goes and hits the target, straight away hits upon our forehead. तो प्रियो ये जो 12 अध्याय सबोपदेशक है और उसके अंदर में हरेक जो शब्द है वचन है और सही जगह में सही लक्ष्य में जा करके हमारे केंद्र बिंदु में और निशाने में लग जाता है। In this book, Solomon uses one word, vain, useless, waste, vain, vain. This pad 35 to 40 times used in these 12 chapters. तो ये 12 अध्याय में सुलेमान एक शब्द को चुना है और वो है व्यर्थ। व्यर्थ व्यर्थ जो है कि 35 से 40 बार उसको वहाँ लिखा है। That means why he has used one word so many times, because he was emphasizing, he was trying to express deep desire, sense of understanding to the people, to the for future generations. He was warning. और यहाँ पर ये शब्द जो है और क्यों उसने चुना है और क्यों उसको जो है कि लाना प्रकट करना चाहता है कि आने वाले जो जनरेशन, आने वाले जो समय के पीढ़ी के लोग हैं इस विषय का ये जो भेद है व्यर्थता का गंभीरता को वो समझ सकें। Keywords, very keywords for this
book of Ecclesiastes is there in chapter 2 verse 11. Key verse. That one that opens. Key opens the house. So key verse opens that mind of God. Key verse Ecclesiastes 2:11. जो सबोपदेशक 2 का 11 पद जो है, ये एक चाबी वचन है। जैसे हम लोग घर को बंद किए, घर को चाबी से घर को खोलते हैं, और वैसे ही ये एक मुख्य चाबी है वचन का, व्यर्थ शब्द जो है, और ये शब्द के द्वारा से परमेश्वर का मन को खोला है। Let us read this chapter 2 verse 11. आइए हम लोग उसके सबोपदेशक 2 अध्याय के 11 पद को पढ़ें। Then I looked on all the works that my hands had wrought, all the labor that I had labored to do. Behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। After much experience, after experimenting everything, and Solomon writes very wisely all his experiences, so that after him people should not be deceived by the world. तो सभी बातों को उसने और अनुभव करके, निरीक्षण करके, आखिरी में उसने ये शब्द को लिखा है, ताकि मनुष्य जो है संसार में और धोखा ना खाए। All his experiences he is passing on to the next generation, even for me, for us, so that we don't have to waste time and our special precious life and energy, and through the experience of Solomon we may be wise enough to invest properly. तो प्रियो, यहाँ पर सुलेमान जो है, और जो कुछ भी अनुभव किया है, जो कुछ भी निरीक्षण किया है, उसने आने वाले पीढ़ी को पहुंचा दिया है, हमारे और आपके तक भी पहुंचा दिया है, कि मनुष्य जो कुछ भी करता है, बड़ा ही समय को, कामों को बड़ी ही बुद्धिमानी से उसको उपयोग कर सके, सब उपयोग कर सके। In fact, Solomon was not selfish. If he was selfish, he would not have warned through his experience, let them die. I also got wasted my life. Let them also waste their life. He would have told, but he was very, very friendly, and he is a very, very fatherly-hearted person. तो सुलेमान जो है कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं था, और हम लोग और कुछ बातों के लिए हम स्वार्थी हो सकते हैं, और कुछ बातों को हम कहते हैं कि जाने दो, मर जाने दो, परंतु वो ऐसा व्यक्ति था जो पिता का हृदय को रखने वाला था, और इसलिए उसने इस बातों को प्रकट किया है। Solomon invested all his time, talent, treasure, everything he has invested, and finally he told one word: everything is waste, everything is vain, everything is vain. उसने, सुलेमान ने जो है अपना ज्ञान, अपना और काम, अपना सामर्थ, अपना जो वरदान है, सब कुछ उपयोग करके देख लिया है, और अंत में कहता है सब कुछ व्यर्थ है। During this COVID time, when we examine what is life, so many dying every day, rich people died, and wise people died, and poor people died, doctors died, engineers died, scientists died, and many people, they lost their lives during this COVID situation. इन वर्तमान ये कोविड महामारी के दिनों में हम जीवन के इस मूल्य को
जान पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो धनी हो या कंगाल हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, और वो मर जा रहे हैं। I don't know whether you have learnt any lesson from this COVID, but God has taught me serious lesson during this COVID period. पता नहीं आप लोग इस कोविड के दिन में, महामारी के दिन में क्या सीखे हैं, परंतु प्रभु ने मुझे और एक सुंदर विचार, एक ऐसे और शिक्षा दिया है। Now coming to Solomon, a wise person, he wants the future generation so that we may not waste time, talent and treasure like him. और ये सुलेमान जो जिस तरह से बताया है, हम अपने जीवन को, समय को और अपने जो वरदान है और अपने कामों को और उसको व्यर्थ ना करें। You are aware, chapter 2, he writes that I enjoyed everything in this world. और उन्होंने जो है सबोपदेशक 2 अध्याय से जो कुछ बातें बताया है, उससे मैं बहुत ही उसमें आनंदित हुआ हूँ। Chapter 2 verse 3, I have taken wine as much as I wanted, but that has not brought total satisfaction to me. Chapter 2 verse 3. सबोपदेशक 2 अध्याय 3 पद में कहा है, मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। Verse 4, I made me great works, I builded me houses, I planted me vineyards. 4 पद में, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। Verse 8, I gathered me also silver and gold. 6 पद में कहता है, मैंने सोने और चांदी, बहुमूल 8 पद में है, मैंने चांदी और सोना। So verse 9, so I was great and increased more than all that were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. 9 पद में, इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। Verse 10, whatever mine eyes desired, I have given it. 10 पद में, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने में मैं ना रुका। But in verse 11 he says, all is waste, all is waste. In the end of his life, everything is waste, waste and waste. That's what he says. लेकिन 11 पद में कहता है कि सब कुछ मैंने देखा, सब कुछ व्यर्थ 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 और वायु को पकड़ना है। After wasting time, whole life, in the end, if you realize that you made a mistake, no doubt you realize the mistake, but you have wasted all your lifetime. That's what he is warning me. He is warning all of us that we may be careful during our lifetime. तो हमारे जीवन के सारे दिनों में, जब आखिरी के दिनों में, और इस बात के लिए बुद्धिमान होना है कि जो कुछ भी हमें सीखना है और उस समय को जो कुछ देना है, सब में व्यर्थ 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 कर दिया है। Anyway, coming to chapter 11. तो आइए हम लोग 11 अध्याय में आते हैं। Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। It is an advice by Solomon
experienced advice by Solomon to everyone. He says, cast thy bread upon waters, and thou shalt find it after many days. What is the meaning of this? तो ये क्या मतलब है? यहाँ पर सुलेमान जो अपने अनुभव को और जीवन के अनुभव को उसने लिख करके मुझको, आप सबको, हमको और समझाने का प्रयास किया है कि जल के ऊपर में रोटी के डालने का इसका क्या मतलब है। He says, you be generous, you spread all your investments, you give out. It may not show results immediately. A day will come, you will see result when you learn to give out. तो वो हमको ये शिक्षा देना चाहता है, और देने के लिए जो कुछ भी हम देते हैं उसका तुरंत जो है उसका इनाम प्रतिफल नहीं मिलेगा, परंतु उसको जो है देने के लिए, बांटने के लिए कहता है। There are people, they receive, but they have not learned how to give. बहुत सारे लोगों ने का जीवन में वो चाहते हैं कि वो कैसे प्राप्त करें, कैसे वो लें, लेकिन उन्होंने देना नहीं सीखा है। We are aware when we have something, and when we share with others, then the joy will be multiplied. We are aware. इस बात को हमें चेतावनी लेना है कि सावधान लेना है कि जो कुछ हम देते हैं उसके देने के द्वारा हमारा आनंद बढ़ता जाता है। So learn to give what we have, learn to share what we have with other people. जो कुछ भी है हमें बांटने के लिए सीखना है, जो कुछ है हमारे पास उसे बांटना है। It is very, very important to learn to give to other people. और ये बहुत ही सीखने की बात है कि हम दूसरे को बांटें। Joshua told to his people, when you go to Canaan, Canaan, you have to do three things. You see, Deuteronomy chapter 12. देखिए, हम लोग व्यवस्था विवरण और 12 अध्याय में इस बात को जोशुआ को लिखा गया है। वर्ष 8, Deuteronomy 12 का व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 8 पद। When you go to in your promised land, and don't do what your eyes says, whatever your eyes desires, don't do everything what your eyes says. Verse 8. 8 पद में लिखा है, जो कुछ तुम उस देश में जाते हो, जो कुछ तेरा आँख करता है उसको नहीं करना। Another exhortation, verse 13, Deuteronomy 12:13. और 12 अध्याय का व्यवस्था विवरण 13 पद में, you don't worship everything which we see in that country. और सावधान रहना कि तू होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना। Another important thing, same chapter verse 13, you take care of Levites who are with you, if you take care of Levites who are in your country. Verse 19. दूसरे पद में 13 अध्याय का 19 पद में लिखा है, और जैसे 12 का 19 में ही, और सावधान रहे कि जब तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को ना छोड़ना। हाँ, लेवियों को ना छोड़ना। You have to take care of God's servants. In our days, in our local assembly, we have to take care of God's servants. तो हमारे जो स्थानीय कलीसिया में है और प्रभु के दास को और लेके चलना है, उसको नहीं छोड़ना है। Many people, they don't take care of their local assembly God's servant. They think
उसका पास ज्यादा है, खाएगा पिएगा, उनका पास सब है. They think like that, but really they don't take care of them. They want to talk, but they won't act. तो वो सोचते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है, वो खाएगा पिएगा, और लेकिन न केवल शब्दों से बोलना है परंतु कामों के द्वारा दे के प्रकट करना है. So verse 1 he says, cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Somewhere, sometime, God will make it fruitful, and when you invest something in the work of God, it gives you hundredfold, hundredfold. तो प्रभु का वचन के अनुसार जो कुछ भी है बांटना है, और कहीं पर भी किसी भी समय पर प्रभु उसको 100% ऊपर से लौटा देगा और उसका प्रतिफल देगा. Nowhere in the world, no job in the world gives hundredfold blessing. Only God's work can give us hundredfold blessing. इस पृथ्वी पर कोई ऐसा दूसरा काम या व्यापार कुछ नहीं है जिसमें 100 गुना वह प्रतिफल मिलता है, लेकिन परमेश्वर के काम में 100 गुना प्रतिफल मिलता है. Chapter 11 verse 2, give a portion to 7 and also to 8. He says give to 7 people or 8 people. Give many people. What it means? Not one person, not your relative, not your neighbor. Give what you have to many people. Not only South Indians, also North Indians. There is no difference. All are our people. All are God's people. Learn to give what you have to God's people and God's house and God's servant. तो प्रियो, यहाँ पर 7 वरन 8 जनों को भाग दे ऐसा लिखा है, मतलब थोड़े लोगों के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए जितनों को आप दे सकते हैं, चाहे वो उत्तर भारत के हो या दक्षिण भारत के हो, सभी हमारे प्रभु के लोग हैं. प्रभु के लोगों को देना है, प्रभु का घर में देना है, प्रभु के दास सेवक को देना है. Every one of us, including me, we should set an example in generosity or in giving, sharing what we have to with other people. और सबों को देना है, मेरे साथ भी, और यहाँ पर सारे लोगों को प्रभु का और लोगों को जो है देना है. What is wise investment? What is wise investment? What is for a believer? What is wise investment? तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट, जो हम बुद्धिमानी से हम जो लगत लगाते हैं, वो लगत क्या है? A leader, first he learns to give first, not to take first, but he learns to give first. जो अगुआ है वो पहला जो शिक्षा क्या है, वो देना है, ना कि वो लेना है. It is my desire, it is my nature that to receive, but God says better to give than to receive. तो ये मेरा एक स्वभाव है, मेरा ये स्वभाव है कि मैं दूं नहीं, मैं लूं. लेकिन प्रभु कहता है लेने से देना भला है. Unless I learn to give, I don't expect, I should not expect that something will come return. Without giving, without sowing seed, you cannot reap the harvest. तो बिना दिए हम ले नहीं सकते हैं, प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते हैं. बिना बीज बोए हैं उसका फल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं. One elderly person told like this: leaders give before they receive. They give first, then before they receive from others. तो एक बुजुर्ग और बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति ने कहा है कि जो अगुए होते हैं वो पहले देते हैं और उसके बाद उन्हें लेना है. One day, one brother
told me about Brother Bhakti Singh. और एक किसी ने भाई भक्त सिंह के बारे में मुझे एक दिन कहा है, When he was a student, he was going for examination. He went to Brother Bhakti Singh for prayer, so that God will help him. He went to Brother Bhakti Singh for prayer on the day of his examination. तो जबकि वो छोटा था तो उसने एग्जाम के लिए भाई भक्त सिंह अंकल के पास प्रार्थना के लिए उसने गया था एग्जाम कर So Brother परीक्षा Bhakti में Singh, बैठने के Brother लिए। Bhakti Singh, Brother Bhakti Singh prayed for him. भाई भक्त सिंह उनके लिए प्रार्थना किए। He has not limited it only prayer, but he did act also. More than prayer also he did it. और उसने थोड़ा सा नहीं परंतु बहुत सा और प्रार्थना को उसने काम के बारे में प्रार्थना किया। He has given him 5 rupees and told him, don't go by walk to exam. You take rickshaw and go. बोल के 5 rupees gift भी दिया। और करने के बाद और प्रार्थना करने के बाद रिक्शा में नहीं, पैदल नहीं जाना है, रिक्शा में जाना है बोल करके 5 रुपया भाई बख्शी ने दिए जवान लड़का को। That has made a great impression upon that student. See, uncle, how he learned to give to other people. और इस बात को भाई खुश होकर के उन्होंने और इस बात को बहुत ही आनंदित हुआ कि और अंकल ने मुझे और न केवल प्रार्थना किया है, पैसा भी दिया। ये दूसरों के लिए एक सीखने की बात है। Not only leaders, elderly people in age, we should set an example so that people observe us, that we are not only receivers, but we are givers. और न केवल और बड़ों के लिए परंतु लोग हमें इस बात को परखते हैं, लेने वाला नहीं वरन देने वाला बनना है। When you give, whatever you give, proportionately, God also will return. Without giving, don't expect that God will bless me, God will bless my family, my children. Without knowing, without sacrificing, without knowing how to give, let us not pray that prayer God won't hear. For all blessings upon us and upon our mandali, our family. तो इस बात को हमें ग्रहण करना है कि न केवल लेना है परंतु देना है। और इस तरह से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु भी देखता है और प्रभु भी जो है हमारे मंडली में, हमारे पक्ष में और इस बात के लिए वो देता है। Chapter 11 of Ecclesiastes, he says, my son, my daughter, learn to give what you have. और ये सबोपदेश 11 अध्याय में इस बात को सिखा रहा है, मेरे बेटे मेरे बच्चों सीखो, देने के लिए सीखो कहता है। By doing this or by learning giving, we are demonstrating that we love God. Because we love God, we love in giving to other people. तो इस बात को पियो और करने के द्वारा और देखने के द्वारा, देने के द्वारा इस बात को प्रभु देखता है कि हम प्रेम करते हैं और हम देते हैं, प्रेम करते हैं। It is not good for me to preach on giving without learning how to give. और ये प्रचार करने से पहले और जैसे कैसे हमें सीखना है, देने के लिए सीखने के विषय में ये बात बताता है। Whatever God has given to us, from that we should be able to share with believers, with God's people, with God's servant, and so on, so on. तो इस बात को हमारे पास जो कुछ भी दिया है परंतु उस बात को हमें देने के लिए सीखना है, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के सेवक को, और इस तरह से हमें सीखना है। Solomon is telling, chapter 11 verse 1 and 2,
you invest in the field of God, in the work of God, whatever you have. Don't invest upon this earth, building, silver and gold. All you have to leave here. Once you invest in the vineyard of the Lord, that will remain with you forever and forever in eternity. सोलोमन यहाँ पर 11 अध्याय के 1 और 2 पद में और जो कुछ भी लागत लगाने के लिए इन्वेस्ट करने के विषय में कहता है कि परमेश्वर की बारी में, दाख की बारी में जो कुछ भी हम बोते हैं, देते हैं, इस पृथ्वी पर जो कुछ हम करते हैं वो सब यहीं रह जाएगा, परंतु जो कुछ भी है जो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के बारे में देते हैं वो सदा सर्वदा के लिए, युगानु के लिए परमेश्वर हमें देगा। And he is also telling, verse 3, if the clouds be full of rain, they empty themselves. If there is a cloud with water, definitely water will fall on the ground. Nowhere water won't go up, it will come down. 3 पद में लिखा है कि यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल लेते हैं। When we are sacrificial, when we learn to give to God, the blessings, the showers of blessings will fall on the earth, will fall on us. Not only showers of blessings, plenty, windows of heaven will be opened, and God will shower the blessings upon us. Spiritual blessings, physical blessings, only we will enjoy when we learn to give to other people. जब कभी भी हम दूसरों को देने के लिए सीखते हैं तो प्रभु का जो आशीष है, आशीष की वर्षा है और हमारे ऊपर में और गिरती है, और आत्मिक वर्षा भी है और इस संसार में हमारे आवश्यकताओं के लिए भौतिक बारिश भी प्रभु हमारे जीवन में उंडेल देता है। Ecclesiastes 11 verse 6, in the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand. उसके 11 अध्याय के 6 पद में भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। He is asking he is asking us to sow the seed both in the morning and both in the evening. और जो वो पूछ रहा है दोनों समय में, सुबह के समय में और सांझ के समय में भी हाथ मत रोक। He is advising all young people, all elderly people, sow the seed or go out and preach the gospel morning and evening, both morning and evening. There is no set time. Gospel can be given around the clock. Morning, don't go to sleep. Morning, don't say that it is not the time. He says sow the seed both morning and evening. तो यहाँ पर जवानों को, बड़ों को, सबको ये चेतावनी दे रहा है, समझा रहा है कि दोनों समय में प्रभु का वचन का बीज को बोना है, सुबह में बोना है, शाम को बोना है, और सोना नहीं है शाम को, पर बोने के विषय में कहता है। I am a farmer's son. My father was a farmer. I know what is sowing seed and what is getting harvest. और इस बात को मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे पिता किसान हैं, और कैसे बोया जाता है और कैसे अपने समय पर इसे काटा भी जाता है। My father used to get up early in the morning and go to field and come back only in the night when it is dark. So whole day, morning till night, every day he was in the field. मेरे पिता किसान सुबह भोर तड़के उठ के जाते थे और सांझ को जब अंधेरा होता था पूरे दिन वहाँ पर रहते थे और वहाँ करते थे। That teaches me a serious lesson. That is not the time. This is not the time to sleep in the daytime, relax in the daytime. Go out and sow the seed in the morning. Go out and sow the seed in the evening. और इस बात को मुझे गंभीर शिक्षा दिया है, पाठ सिखाया है कि और सुबह भी जाना है, शाम को भी जाना है, दिन टाइम में सोना नहीं है और प्रभु का वचन को बांटना है। Whatever may be the opposition, whatever may be the situation,
we should not stop sowing the seed or preaching the gospel. कोई भी कठिन समस्या हो और रुकावट बाधा हो, इस बात के लिए रुकना नहीं है, प्रभु का वचन को बांटते रहना है। Verse 8 he says, if a man lives for many years, long life, and it is also vanity. You need not live 100, 120, because when there is no strength, sitting and eating, of no use. You have to cultivate, you have to sow the seed. As long as we live, we have to be active, not inactive. तो मनुष्य अगर बहुत वर्ष भी जीवित रहे तो 8 पद में कहता है, और उससे वो आनंदित नहीं रहता है, और हमेशा उसमें जो है एक्टिव और उसमें तंदुरुस्त रहना है, तत्पर रहना है, तैयार रहना है, और इसके लिए और उसका जीवन है। We may be old, young, whatever it is, but we should learn how to invest our life in the vineyard of the Lord. तो चाहे हम बड़े हों या जवान हों, इस बात को हमें शिक्षा लेना है, प्रभु का घर में हमारे जीवन के समय को प्रभु के दाग की बारी में और उसके लगत को लगाना है। He says, chapter 11 verse 9, you do whatever you want to do, but don't forget that every work will be judged. Every work, what every man, woman will do, God will judge every work. तो ये जो 11 अध्याय का 9 पद में लिखा है, जो कुछ तू कर रहा है, पर यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। In government offices, when we use money, after using money, there will be audit. How we have used money, how we have invested money. Audit people will go through all accounts. Sometimes they will find fault that we have excessively spent, or you have given bribe to somebody. Audit people will catch. तो जो सरकारी अफसर अधिकारी रहते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं और खर्च करते हैं, उसका वो लेखा करते हैं, लेखा जोखा करते हैं। जहाँ कहीं भी चूक जाते हैं, उस बात को ठीक ठाक करके उसको पकड़ लेते हैं और अच्छा करते हैं। Those who spend money lavishly, unaware, and not properly utilized, such people, after some time, audit people will go through the accounts and they will catch them. और जो कुछ जो है वो खर्च करते हैं व्यर्थ में और सही रीति से खर्च नहीं करते हैं, इधर उधर व्यर्थ कर देते हैं, उसका वो लेकर के उनको पकड़ते हैं। Same way, God also says, my son, my daughter, whatever you want to do it, but don't forget that God will bring everything into judgment, audit, how you have spent time, how you have spent your money, talent, treasure, how, give me account, I am going to be a judge, I will judge your life. तो प्रभु भी इस रीति से कहता है हमको, हे मेरे बच्चों, मेरा बेटा बेटी, और जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी पर जो कुछ भी दिया गया है, कैसे समय को जीवन बिता रहे हो हमारे साथ, जो कुछ भी हमारा दान वरदान है, इन सब बातों के विषय में प्रभु और सबका हिसाब मांगेगा, लेखा जोखा मांगेगा। We cannot escape from the judgment of God. हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते हैं। You may escape from father, mother, wife, husband, children. We can hide from them. We can escape from them. But one thing is sure, that we cannot escape from the eyes of God. हम हो सकता हो माता पिता से बच सकते हैं, हिसाब किताब से, और बच्चों को हम नहीं, बच्चों को छुपा सकते हैं, पत्नी से छुपा सकते हैं, सबसे छुपा सकते हैं, परंतु हम परमेश्वर के दृष्टि से, परमेश्वर के आँख की दृष्टि से बच नहीं सकते हैं। While reading this verse, I was so much broken down that God is going to judge me all my life, how I have lived, how I have behaved, how I have spent my time, talent and treasure,
I have to give account, everything account unto God. और मैं इस बात को किस लिए कहा है कि मैं मेरे जीवन में देखता हूँ कि मैं जो कुछ भी जीवन दिया, समय बिताया, खर्च किया, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी गलती किया, सब बातों का परमेश्वर मुझे मेरे बातों का और उसे लेखा देना पड़ेगा, न्याय करेगा। God will evaluate all my human deeds, what all I have done. God will go through that and He will examine and He will judge me. जो कुछ भी हमने इस जगह में किया है और हमें वहां से बच के नहीं जा सकते, उन सभी बातों में परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में और लेखा लेगा, उसको जांचेगा, परखेगा। Nobody on this earth can escape from the judgment of God. कोई भी इस पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता है। So, see, there is a serious warning from Solomon for future generation, and he was very keen to pass on his lessons to the future generation. I have learned by hard way. My children, do this, don't do that. Do this, don't do that. This is what life. That's what he has written in the book of Ecclesiastes. और इस बात को सुलेमान ने जो है हर एक चेतावनी के रूप में और हमारे लिए और पूरे पीढ़ी दर के लोगों के लिए इस बात को और लिख दिया है। कहता है कि बेटा, मेरे बेटी, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना। मैं मेरे जीवन के अनुभव का बड़े कठिनता परिस्थिति में गया हूँ, परंतु इस काम को तुमको नहीं करना है, काम को करना है। Bible says, be not deceived, God is not mocked. Whatsoever man soweth, same shall he reap. तो बाइबल कहता है कि इस बात के लिए वो मनुष्य धोखा ना खाए, और धोखा परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाया नहीं जा सकता है। जो कुछ भी मनुष्य बोएगा वही उसको काटेगा। Solomon says, "Oh young man, don't forget that all your young life deeds will be forgotten. Nothing will be forgotten. I have stored everything, and I am going to judge everybody according to their deeds." और सुलेमान कहता है, मेरे जवान, इस बात को नहीं भूलना है, इस बात को नहीं भूलना है कि परमेश्वर सब बातों का, काम किया हुआ बातों का न्याय करेगा। परमेश्वर, क्योंकि उसने मेरे बातों के लिए उसने जो है कि न्याय किया है। Solomon says there is real satisfaction in God. If you seek satisfaction outside God or in the world, a day will come, you will be deceived, you will repent, you will cry, you will weep. तो परमेश्वर सुलेमान कहता है कि परमेश्वर में संतोष ढूंढना है, तृप्ति ढूंढना है। संसार में तृप्ति नहीं ढूंढना है। संसार में जाएंगे, धोखा होगा, उसमें कोई भली बात नहीं होगी। And outside Jesus Christ there is no joy. Outside Jesus Christ there is no life. Outside Jesus Christ there is no satisfaction. प्रभु यीशु मसीह के बाहर कोई जीवन नहीं है, कोई तृप्ति नहीं है और कोई शांति नहीं है। There is great joy we will feel when we learn to love God, when we learn to serve God. और ये बड़ा आनंद है कि बात हम होती है जब हम सीखते हैं प्रभु से सीखते हैं प्रभु से आनंद पाना, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के लिए सेवा करना। Serving the Lord sacrificially, learning how to give, that is very, very important in a believer's life. विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बलिदानिक रूप से प्रभु की सेवा करना। God the Father has given His begotten Son to all of us, His only Son to all of us, to be crucified on the cross, so that we may also learn how to give to God. तो इस बात से हम परमेश्वर से सीखते हैं कि परमेश्वर हमें सिखाता है, क्योंकि उसने अपना
एक ही बेटा था, एकलौता बेटा को उसने हमारे लिए बलिदान कर दिया। और इसलिए प्रभु से हम सीखते हैं कैसा हमें हमारे लिए, हम उसे सीखते हैं देने के लिए, उसे प्रेम करने के लिए। When Father has given His own Son to all of us, to me, having received the gift of salvation, all the blessings, why I cannot share my joy and my treasure with? Why not I share with other people? तो परमेश्वर ने कि जबकि मेरे छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए जब वो अपने प्रिय पुत्र को दे दिया है, तो इस बात को मैं क्यों ना लोगों को प्रकट करूं, लोगों को बताऊं कि परमेश्वर ने मुझसे कैसा प्रेम किया है। So in this chapter 11, Solomon is exhorting to me and to all of us that learn to give what you have, so that your joy may be multiplied, your joy may be full. तो ये सुलेमान जो है चितलाता है इस 11 अध्याय में कि हम इस बात को सीखें, देना के विषय में, प्रेम करने के विषय में, और इस तरह से दे करके हम प्रभु को अपना प्रेम प्रकट करें। Giving quality is godly quality. देने का स्वभाव ये कि ईश्वरीय स्वभाव है। If you receive Lord Jesus Christ into our heart, having received, you will also have a desire to give to other people, share the testimony, share our experience, and lead people to God and God's house. तो जब हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे और हमसे प्रेम किया है, तो उससे हम देने सीखते हैं। देना सीखना प्रभु से होता है, और हम कैसे हम देने सीखते हैं, प्रभु का घर में लोगों को ला सकते हैं, अगुवाई कर सकते हैं, वचन बता सकते हैं। So another important thing is, you have satisfaction only when there is God in our hearts. Otherwise, whatever you have, studies, employment, riches, house, silver, gold, name, fame, whatever we have, a day will come that will not bring satisfaction. Only God can give us satisfaction. दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि हमें केवल तृप्ति, शांति प्रभु से ही मिल सकती है। और दूसरा जो कुछ भी है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे घर हो या गाड़ी हो या पढ़ाई हो या और कोई बात हो, किसी भी बात से हमें तृप्ति नहीं मिल सकती है। तृप्ति केवल प्रभु परमेश्वर से मिल सकती है। Solomon learned this lesson, serious lessons, in a hard way, but he is teaching us. You learn. He is teaching us so that we may not be deceived in the lifetime, in our lifetime. तो इस बात को सुलेमान चेतावनी के रूप में लिखता है, क्योंकि उसने बड़े ही कठिन मार्ग राह में से चल के इस बात को सीखा है। और वो कहता है कि हम धोखा ना खाएं, हम सीखें और सीख करके हम इस सारे बातों से हम प्रभु की सेवा करें। May the Lord help us to understand the lessons Solomon learned and the lessons he has passed on to our generation. और तो प्रभु इस विचारों को आशीष करें। सुलेमान ने इस बात को सीखा और उसने आने वाले पीढ़ी तक और हम तक प्रभु ने पहुंचाया है, ताकि हम भी इसको सीख सकें। May the Lord bless this little word. प्रभु इन थोड़े से विचारों को हमारे लिए आशीष करे। दुआ करिए, कोई दुआ करिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं। एक सुंदर पाठ आपने हमें शिक्षा दिया है देने के विषय में, महान पिता। और 11 अध्याय में 1-2 पद प्रभु जी जो देने को सीखते हैं, उन्हें कितनी आशीष है, कितनी भलाई है। और प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और सब कुछ दे दिया है, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, इस बात को आपने हमें सिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुसमाचार करने के विषय में 6 पद में बताया प्यारे प्रभु जी, सुबह शाम
बीज बोना है प्यारे प्रभु जी, रुकना नहीं है। दयालु प्रभु धन्यवाद देते हैं। महान प्रभु इस वचन के अनुसार न केवल बोलने वाला सुनने वाला, लेकिन उसके अनुसार करने के लिए मेरी हमारी सहायता मदद करें, आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और 8 पद के अनुसार महान प्रभु जी, संसार में हम जितने दिन जीवन बिताते हैं प्रभु जी, आप ही की लिए जी सकें, और इस तरह से प्रभु जी एक दिन हमारा न्याय होगा। इन बातों के द्वारा आपने प्रभु जी बातें किया, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके भलाई के लिए, आपके आशीष के लिए प्यारे प्रभु जी। आओ मनुष्य जो कुछ सुलेमान ने सीखा है, जो कुछ भी उसने कमाया, परंतु सारा पृथ्वी भर की आशीषें हैं वो व्यर्थ ही है प्यारा प्रभु। जिस बात को सीखा है कठिन मार्ग से उसने सीखा है प्यारा प्रभु, लेकिन उसने आने वाले हमारे तक पहुंचा दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस विषय के लिए, इन सारे अध्यायों के लिए आपका हम स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। सारी बातों में आप जितने सारे भाई बहन सुने बैठे, हर एक से बातें की है, धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु जी, जो नहीं जुड़ सके उन्हें भी आप आशीष दें, और उन्हें भी प्रिय पिताजी वचन उन तक भी पहुंच सके, सहायता मदद करें। महिमा आदर गौरव दे देते हैं। प्रार्थना सुना है, विशेष करके आपके दास को पिछले दिनों में तो शकेती में जाना पड़ा, परंतु आपने उन्हें अद्भुत रीति से चंगाई दिया है। सिस्टर को भी प्रेम पिताजी आपने चंगाई दिया है, और धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में आपकी योजना में, आपकी इच्छा में लगातार हमें उत्साहित करने के लिए उन्हें आप इस्तेमाल करें और आशीष दें और बलवंत करें, प्रार्थना करते हैं। जो महामारी के दिनों में लेसन पाठ हमें आप दिया है, ये बहुत ही प्यारा प्रभु जी और उत्तम बात है। बहुत ही बहुमूल्य पाठ को हमें प्रभु आत्मिक और हमारे जीवन में के लिए है, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर गौरव दे देते हैं। प्रार्थना लाते हैं मसीह यीशु के नाम में, सुने ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, परमेश्वर पिता का प्रेम अब भी हो और सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। आमीन।